طرف سے اسلام۔ آج شام خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے شکر گزار ہیں جس نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں موجود ہیں۔ آمین۔ اب تک کی پرستش کے لیے، ساری باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کے خادم پاسٹر محمود، پورا نام کیا ہے؟ محمود صادق صاحب کے اور پادری سہیل کے اور دیگر تمام خدام کے ہم شکر گزار ہیں، اور آپ سب کے بھی کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو آج آپ کے درمیان شیئر کریں۔ کتنے آج خداوند کا کلام سننا چاہتے ہیں؟ واقعی سننا چاہتے ہیں؟ اچھا، آج کلام کی بارش ہونے والی۔ آمین۔ کلام آج آسمانوں سے آئے گا اور آپ کی ہڈیوں کو تازگی بخش دے۔ آمین۔ کیا آپ تازہ ہونا چاہتے ہیں؟ اور میں خدا کے خادموں کو بھی کہوں گا کہ آج آپ بھی تازہ دم ہو جائیں۔ آمین۔ میں سوچ رہا تھا کہ عام طور پر ایونجلزم میں جو ہے وہ ایک سادہ سا میسج دیا جاتا ہے، لیکن جب کبھی خداوند ہم پر اپنے کلام کو کھولتا ہے تو پھر ہمیں وہ ڈلیور کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، اور بہتوں کے لیے یہ نبوتی پیغام ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو بدل کر، تبدیل کر کے، چینج کر کے رکھ دے۔ آمین، آمین، آمین۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام کو میرے ساتھ کھولیں گے۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اگر آپ بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لائے ہیں یا آپ کے موبائل میں ہے تو میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب نکالیے، اس کا 31واں باب 31 چیپٹر نکالیں گے، اور اس کی 20ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب 31واں باب 31ویں کہندے جو، اور اس کا 20ویں آیت لکھا ہے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند نے اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس کا کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ پہلی آیت 32ویں باب کی، ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد شاہ اسور سنہیرب نے چڑھ آیا اور یہودا میں داخل ہوا، اور فرسیلدار شہروں کے مقابل خیمہ زن ہوا اور ان کو اپنے قبضے میں لانا چاہا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ حزقیاہ خداوند کا خادم، بادشاہ، 14واں نمبر ہے اس کا یہودا کے قبیلے میں، اور خداوند کا کلام کہتے ہیں حزقیاہ کے نام کا مطلب ہے کہ خدا نے جس کو مضبوط کیا۔ یاد رہے، ابھی جب یہ پرستش شروع ہی کی شاہ صاحب نے، تو اس نے پہلی بات یہ کی، میری مدد کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ آج خدا کا کلام نبوتی کلام ہے، کیونکہ ہمارا خدا مضبوط کرتا ہے۔ حزقیاہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط کیا، سینٹر کیا۔ ایسا شخص جو کمزور ہے، جو ناتواں ہے، ہمارا خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط کرنے والا ہے۔ حزقیاہ ایک بادشاہ تھا جس نے 25 سال کی عمر میں اپنی بادشاہی کا آغاز کیا، اور 29 ایئر یعنی 29 سال اس نے خداوند کے حضور جو ہے یہ بادشاہی کی۔ اس کا ذکر آپ کو خدا کے کلام میں تواریخ کی دوسری کتاب کے 18ویں باب سے
20वें बाब पे मिलेगा जो पढ़ने वाले हैं, और तवारीख की दूसरी किताब के 29वें बाब से 32वीं बाब तक इसका वाक़या आपको मिलेगा, और यसाया की किताब के 36वें बाब से 39वें बाब तक जो है इसका जिक्र आपको मिलेगा। अभी हमने जो बात पढ़ी, अगर आपने गौर किया हो तो लिखा है खुदा के कलाम में, सो हिजकिय्याह ने सारे यहूदा में, यानी जिसका वो बादशाह था, सारे यहूदा में क्या किया, जो कुछ खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला और रास्त और हक था वही किया। इस बादशाह ने क्या किया, जो रास्त था, जो भला था, जो ठीक था, उसने वही किया। और खुदावंद का कलाम कहता है उसने खुदा के घर की खिदमत दिल से की, उसने शरीयत को पहुंचाया, उसने अहकाम को जो है उस पर अमल किया, और लिखा है वो खुदा का तालब हुआ, सारे दिल से खुदा का तालब हुआ। और खुदावंद का कलाम ये कहते हैं कि जब वो तालब हुआ तो खुदा ने उसे खूब कामयाब किया, और ये कामयाब एक शख्स था। और खुदावंद का कलाम कहते हैं, अगर आपने 32वें बाब को गौर से सुना तो लिखा है इन बातों और इस ईमानदारी के बाद, क्या जी मेरे साथ रहिए, क्या इन बातों के बाद और ईमानदारी के बाद, यानी बंदा की है ईमानदार, अरे तेरे नाल नहीं थी, बंदा की है ईमानदार, बंदा ईमानदार है, खूबियाँ बहुत है। पहले मैं इसकी 4 बड़ी खूबियां आपको बताना चाहता हूं कि हिजकिय्याह की जिंदगी की 4 बड़ी जो है इसके बाइबल मुकद्दस में 4 बड़ी खूबियां हैं। और पहली खूबी ये है जो खुदावंद के कलाम में लिखी हुई है, वो 31वें बाब की पहली आयत पे लिखा है, और जब ये हो चुका तो सब इसराइल जो हाजिर थे यहूदा के शहरों में गए, और सारे यहूदा और बिन्यामीन और इफ्राइम और मनस्सी के भी सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया, और सीरतों को काट डाला, और ऊंचे मकामों और मजहबों को ढा दिया, और यहाँ तक उन सबों को नबूद कर दिया। और तब बनी इसराइल अपने अपने शहर और अपनी अपनी मलकियत को लौट गए। इस बादशाह ने ये काम किया कि सबसे पहले जो लोग, वो कौम बुत परस्ती में, खुदा की जो है हजूरी में ये सीरतें थी, बुत परस्ती थी, ये बुत परस्ती करने लग गई। और कई बादशाहों के होते हुए भी ये बुत परस्ती चलती रही। लेकिन जब हिजकिय्याह बादशाह ने जो है इक्तदार को संभाला, तो खुदावंद का कलाम कहता है उसने पहला जो नेक और अच्छा और जलाली काम किया, उसने तमाम इस कौम के अंदर से बुत परस्ती जो है उसको क्या किया, खत्म किया। ये इसका पहला काम था। और मैं समझता हूँ ये काम करना बहुत मुश्किल काम भी है। जब बुत परस्ती, कई लोग, मैं आज सुबह सोच रहा था जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था कि आज लोग बेदारी के लिए बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि बेदारी आनी चाहिए, रिवाइवल आना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ रिवाइवल की पहली शर्त ये है कि जो इंसान के अंदर गुनाह हैं, बुत हैं, बुरी बातें हैं, ऐसे गुनाह जो इंसान और ईमानदारों की जिंदगी में चिमटे रहते हैं, जब वो निकलते हैं फिर बेदारी आ जाती। बेदारी सिर्फ गीत गाने से नहीं आती, वो तो ढोलकी की ताल पर थोड़ा जा तफा ज्यादा लगे ते बंदे दा नचन नूं वैसे ही दिल करता है। मैं भी कोई चंद गवाइयां सुनाऊं, आप पुड़कतेंगे, उससे भी बेदारी नहीं आएगी। लेकिन बेदारी क्या आएगी, जब आप अंदर के अपने गुनाह का क्या करेंगे, इकरार करेंगे। जब गुनाह अंदर से, लीडर से, बड़े बड़े लीडरों के अंदर से जिनके साथ चिमटा होता है। हमारे मशहूर एक बुजुर्ग खादम होते थे, वो कहते थे कि गुनहगारों से तो गुनाह को निकालना थोड़ा सा आसान है, वो तो कलाम सुनकर वो जो है वो तौबा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी लीडरों से, आपको पता था ना, पंजाब में रहने वाले हैं, तो एक नाइयों के पास होता था मोचना, उससे क्या करते थे, मोचने से। पुराने वक्त में, अब तो चीजें और हो गई हैं बिशप साहब, वो मोचने से क्या करते थे, किसी दे कंडा चुभ गया,
किसी को चीज़ ऐसी कर लिया तो उससे क्या करते थे, निकालते थे। कभी कभी ईमानदार इतने गुनाह के साथ जो है वो लिपटे होते हैं कि मोचनिया चो भी उन्होंने गुनाह कट गए तो वो की नहीं करता, निकलते नहीं, दुआ ऊपर से करेंगे, बेदारी आ जाए। हिजकिय्याह ने जब काम शुरू किया, पहला काम उसने ये शुरू किया कि उसने पूरे यहूदा के अंदर से बुत परस्ती को खत्म। अगर आप चाहते हैं बोजरा में, हमारे शहर में, पाकिस्तान में या कहीं भी बेदारी आ जाए, तो बेदारी किसी से नहीं शुरू होनी, बेदारी लीडर से शुरू। कहाँ से शुरू होनी? हमसे शुरू होनी है। और जब हमारे अंदर पाक हो जाएंगे, हम खुदावंद में गहरे हो जाएंगे और खुदावंद का जलाल हम की ज़िंदगी में क्या होगा। मुझे यहाँ पर जदाऊन याद आ गया। जदाऊन को जब खुदावंद ने कहा जा इसी जोर में, तो पहले उठा और पहले उसने जाकर अपने बाप के बुत को क्या किया? तोड़ा। किसको तोड़ा जी? जोर से जरा, कि कौन सा बुत तोड़ा? साढ़े जो कई हुंदा उन्हें अपना नहीं सी तोड़ना, किदा तोड़ना सी? दूसरे दा तोड़ना सी। लेकिन याद रहे, बेदारी आपके घर से, आपकी जिंदगी से, आपके चर्च से शुरू होगी। जब उसमें पाकीज़गी आएगी, इस जो है यहूदा सारे में हिजकिय्याह ने इस काम को जब शुरू किया तो पहला काम किया कि इनको सबको पाक किया। और जब पाकीज़गी आती है फिर बेदारी आती है। आमीन। और खुदावंद का कलाम ये कहते हैं कि जब इसने ये जो है वो बुत परस्ती को ख़त्म किया, तो खुदावंद का कलाम कहते हैं यहाँ दूसरा बड़ा काम जो हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं हिजकिय्याह बादशाह की ज़िंदगी में। याद रहे, हिजकिय्याह और है वो नबी है, ये कौन है? बादशाह। इसका क्या नाम है? हिजकिय्याह। तो इसने दूसरा बड़ा काम जो किया वो खुदावंद का कलाम ये कहते हैं, वो 29 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, 29वां बाब, उसकी 3री आयत, तो लिखा है उसने अपनी सल्तनत के पहले वर्ष के पहले महीने में खुदा के घर के दरवाज़ों को खोला और उसकी मरम्मत की। जब ये इक़्तिदार में आया तो इसका बाप, बल्कि अगर इसके दादे को पढ़े 27वें बाप में, तो लिखा है योताम 25 बरस का था जब सल्तनत करने लगा। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में, टाइम बचाने के घर से दूसरी आयत से पढ़ रहा हूँ, उसने वो ही किया जो खुदा की नज़र में दुरुस्त ठीक ऐसा ना किया जैसा उसके बाप उजिया ने किया था, मगर वो खुदा की हैकल में नहीं घुसा। काम करता रहा, लेकिन उसने खुदा की हैकल में दादा आगे दादा हैकल च नहीं गया, तो जेड़ा आगे पुत्र सी आखस बादशाह वो क्या नहीं किया, उसने हैकल के वैसे कील लगा के ना दरवाजों को क्या कर दिया। इंजने भी लीडर होंगे जो कई तो दरवाजे खोल दे जो, तो कई दरवाजे बंद कर दे जो। ये क्या बादशाह है? दादा बढ़िया ही नहीं कभी। क्या आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो कभी चर्च ही नहीं गया, कभी नहीं गया? पौक कई आंदे ने भाई जी असी कभी गए ही नहीं, असी कई गए नहीं। बाता बूता होण किते शुगल मुगल का काम किते वड्डा होवे ते असी चले जाने, पर असी हैकल में कभी नहीं घुसे। लेकिन याद रहे, जो हैकल में नहीं घुसा, आगे पुत्र ओदा पैदा होया और वो पुत्र का नाम आगे लिखा हुआ है 29 चैप्टर जब आप पढ़ते हैं। अखज 20 बरस का था, सल्तनत करने लगा, के कामों ने जिन्ने कीते पुठे, क्योंकि प्यो पुठा ते मैं पंजाबी च इसलिए कहना सारे प्यो पुठा, क्यों? अगे पुत भी पुठा और ओदे भी काम की पुठे। कई ये समझे ने कि साडा पुत्र बड़ा चंगा चले, ये चंगियां चंगियां रावां दे उत्ते चले ते प्यो ना चले। प्यो चर्च कदी वड़िया ही नहीं, क्योंकि पुत्र ने कहा जे प्यो नहीं वड़िया ते तू ते वड़िया नहीं, मैं वैसे ही दरवाजिया नूं किल ला दा। उन्हें एडे एडे की लाए, किल लाए कि ना आप जाना है ते ना किसी नूं जान देना है। लेकिन मैं हिजकिय्याह, उसका जब पोता पैदा हुआ तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, वो अपने बाप दादा की रस्मों पर नहीं चला, ना दादे पर चला,
ना 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 बाप पर चला। इसीलिए आप बार बार पढ़े। जिस चीज को मुझे बड़ा अच्छा लगा, गौर से पढ़िए, खुदा का कलाम कितनी बरकत देता है इस बात के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा के कलाम की कितनी ये बड़ी सच्चाई है। लिखा है कि वो उसने वो ही किया जो खुदा की नज़र में अच्छा था। और खुदावंद का कलाम कहता है वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला। हिजकिय्याह का बाप दाऊद तो नहीं था, हिजकिय्याह का बाप दाऊद तो नहीं था, उसका बाप तो कौन था? आखिस था, जो कभी कल्बे गुस्सा ही नहीं था। लेकिन ये अपने बाप दादा की राहों पर नहीं चला। कभी कभी हम इतने पक्के होते हैं कि जे बाप उठे राह थे ते मुंडे ने आखना मैं भी उसे। हिजकिय्याह ये कलाम करता है, हिजकिय्याह बादशाह ये आज हमें एक आवाज देता है, वो ना अपने दादे की राहों पर चला, ना अपने बाप की राहों पर चला। और खुदावंद का कलाम कहता है उसने अपने बाप दाऊद की खातिर, जो रूहानी बाप था, उसकी खातिर उसकी राहों पर क्या करा। इसलिए आप बार बार खुदा को कलाम को पढ़ें। जहाँ हिजकिय्याह की बात आएगी वहाँ लिखा हुआ है वो अपने बाप की राहों पर क्या किया, चला। मैं आज कहना चाहता हूँ मुबारक वो लोग हैं जो अगर बाप नहीं खुदावंद के साथ चल रहा, माँ नहीं चल रही, अगर वो इस बात को नहीं छोड़ रहे तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम भी गुनाह ना छोड़े। मैं नौजवानों को, बेटे बेटियों को कहना चाहता हूँ कि वो छोड़कर सीधी राहों को इख्तियार करें और खुदावंद उसका क्या देगा, साथ देगा। और खुदा ने हिजकिय्याह का क्या दिया, क्या दिया? ताली मारनी जो तो जोर ना मारे। उसने हिजकिय्याह का क्या दिया? हिजकिय्याह ने काम क्या किया? जब इक़्तिदार में आया ना तो दूसरा उसने काम पता क्या किया? उसने हैकल के दरवाजे। क्या खूबसूरत जो है वो बादशाह है कि जिसका ध्यान किस तरफ है। उन्होंने दाऊद का पुत्र इसलिए क्या गया क्योंकि दाऊद का भी बड़ा तल्लक के देना हैकल, वो भी बड़ा प्यार करता है खुदा दी हजूरी ना, खुदा दे मसाना उन्होंने भी बड़ा प्यार सी। आज मैं कहना चाहता हूँ अगर आप कितने बड़े बड़े जो है वो बरकता पाना चाहते हैं, ये सब कुछ खुदा के डर से है, खुदा की हजूरी से है, खुदा के साथ जुड़े रहने से है। 3 काम कभी ना करें। अगर आप बुजुर्ग की बात को माने, मैंने अपनी जिंदगी के इन सालों में ये सीख लिया है, 3 चीज़ों से कभी जुदा ना हो, भावें कुछ भी हो। एक खुदावंद का ये है कि आप कभी खुदा की हैकल से जुदा ना हो। पहली बात क्या है? जोर से बोले कैसे हैं? एवं छां बां नहीं करनिया करना कि भाई जी मैं नहीं। कदी कदी कई लोग जड़े ने इंज, एक बुजुर्ग खादम मुझे मिला, कहने लगा यार आज एक बीबी ने मैनू हैरान ही कर छड़िया। मैं कहा क्या हुआ है? बुजुर्गो कहने लगे रास्ते में मैनू मिली तो कहने लगी भाई जी आज कोई खुदा को होर भी मंगते तो सानू नप जाना, जानू इन्नी देर बाद देखा आओ साढ़े घर। कहता मैं कहीं जा रहा था, मेरे पास 10 मिनट थे, मैंने कहा चल इस बुजुर्ग के पास मैं गया। मैं क्या भाजी तुसी चर्च ने कई बार वेख्या चर्च की जाना भाई जी साढ़े ना बड़ा प्यार, पर जो कलाम सुनाते हो तुसी कलाम सुनाते जाते मैनू उधरों चिड़ चढ़ती खादम ना प्यार ते कलाम ना। उसने आखा भाजी ये किहड़ा तरीका है कि कलाम आंदी एक फिर तुसी कलाउंदे भी हो ते थोड़ा लंबा सुनाउंदे। उन्होंने सोचा खुदा नहीं बचाउंदा, आप बल्ली ते जिहड़ा सप लटकिया है ना और ये जो है ये हमें क्या करती है। तो वो लिखा हुआ है सब बुत परस्ती में पड़ गए और सांप की क्या करने लगे। इंसान की मुश्किल ये है कि जिथों एक बारी कोई चीज़ लभ जे फिर आप इंसान कई दफ़ा रब नूं छड्ड के ते दूजियां चीज़ों नूं की कर देंदा है, पूजना शुरू करता है। तो खुदा का कलाम कहता है जब हिजकिय्याह बादशाह का ये दौर आया तो उसको जब ये पता चला तो उसने इस पीतल के सांप को पीस कर पानी में क्या कर दिया था। तो ये इसराइल से भी एक बहुत बड़ी बुराई उन्होंने ख़त्म की थी। एक बहुत बड़ी बुराई का जो है वो ख़ात्मा यहूदा से किया था और खुदा का कलाम कहता है इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया इसके अंदर से। और ये हिजकिय्याह का चौथा काम था। लेकिन मैसेज में आज क्या देना चाहता हूँ, बावजूद इतनी खूबियों के मालिक होने की, कितनी खूबियाँ उसमें,
जल्दी से जरा मुझे बताइए। अब मैं असल मैसेज की तरफ, ये मैं आपको बता रहा था कि असल में हिजकिय्याह बादशाह के अंदर कितनी खूबियां थी। पहली क्या उसने काम किया, क्या किया? यहूदा के कबीले के अंदर से बुत परस्ती को क्या किया? दूसरा उसका बड़ा काम क्या है? उसने हैकल की क्या की? सफाई की। तीसरा क्या काम उसने किया? ईद फसा को दोबारा से क्या किया? आगाज किया। और चौथा काम है वो पीतल के सांप की जिसकी बुत परस्ती होने लग गई, उसको क्या किया? लेकिन आप 32वें बाब में आइए, जो मैसेज आज मेरी रूह के अंदर है वो क्या है? लिखा है इन बातों, किन बातों? जिन बातों का जिक्र है कि उसने अच्छे काम किए, इन बातों और इस ईमानदारी के बाद शाय असूर सनहिरब चढ़ आया और यहूदा में दाखिल हुआ। बंदा ईमानदार, बंदा नेक, हर अच्छी खूबियों से क्या किया हुआ? भरा हुआ। मेरे साथ रहिए। बंदा नेक, बंदा अच्छा, खूबियों से भरा हुआ। आपने 4 बड़ी खूबियां भी उसकी देखी, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है फिर भी एक दुश्मन उस पर कौन आया? चढ़ आया। क्या आया? आम तौर पे बंदा ये सोचता है कि जेड़ा बंदा ईमानदार होएगा, रास्तबाज होएगा, जेड़ा बंदा बहुत दुआ करने वाला होएगा, जेड़ा बंदा बहुत चर्च जाने वाला होएगा, जेड़ा बंदा बहुत खुदा नू हदिया देने वाला होएगा, शायद उस पर कभी दुश्मन वार ना करे। लेकिन आज पैगाम ये है, ईमानदारों, हम सब जो हैं वो दुख में से, मुसीबत में से, परेशानी में से, बुरे हालात में से, परेशानियों में से गुजर सकते हैं। और ये ईमानदारों पर, छोटे ईमानदारों पर भी, बड़े ईमानदारों पर भी बड़े बड़े प्रेशर्स आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े प्रेशर आ सकते हैं। हिजकिय्याह के पास इतनी खूबियों के मालिक होने के बावजूद खुदावंद का कलाम कहता है उसकी ईमानदारी के बावजूद, उसे खुदा के साथ ठीक चलने के साथ भी दुश्मन ने उन पर क्या कर दिया है? हमला कर दिया है। तो मैसेज ये है कि दुख तो आएंगे, परेशानियां आएंगी, मुश्किलात आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, और भी काम हो सकते हैं, मुश्किलात ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस मुश्किल में एक ईमानदार का रद्द अमल क्या हो सकता है? असल बात है कि ऐसे वक्त में एक ईमानदार का क्या हो सकता है? रद्द अमल क्या हो सकता है? एक्शन क्या हो सकता है? और आज हम हिजकिय्याह की जिंदगी से ये देखेंगे कि सिर्फ वो खूबियों से भरा हुआ नहीं है, सिर्फ वो गवाहियों ही से भरा हुआ नहीं है, वो सिर्फ इन बातों से भरा हुआ नहीं है। वो जानता है बहरानों से भी निपटने के लिए, वो जानता है मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए, वो जानता है कि जब बड़ी बड़ी मुसीबतें, परेशानियां, दुख आ जाते हैं तो उस वक्त यहोवा खुदा पर किस तरह ईमान रखा जाता है, किस तरह उसके बारे में सोचा जा सकता है। और खुदावंद का कलाम कहता है इस पर एक बहुत बड़ा हमला हो गया और सनहेरीब ने इस पर क्या कर लिया? हमला कर लिया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब ये सारी बातें 32वें बाब पे कही गई तो खुदा का कलाम कहता है 32वें बाब की 3री आयत से पढ़ें तो लिखा है उसने सब कुछ बातें बताई। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि 7वीं आयत पे लिखा है हिम्मत बांधो, हौसला रखो, असूर के बादशाह के साथ सारे अम्बों के स्वभ से ना डरो। ये हिजकिय्याह उनको कह रहा है। और हिजकिय्याह क्योंकि वो आकर बड़ी बातें कर रहा था और खुदावंद का कलाम कहता है, वो कहता है हरासा ना हो क्योंकि जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उनके साथ है। आमीन। सारे बोलिए इस बात को, जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो उनके साथ है। किनके साथ? दुश्मन। दुश्मन हमारा कौन है? अबलीस। अबलीस से बड़ा कौन है? जोर से बोलो, है? अबलीस से बड़ा कौन है? अच्छा कई डरे ही बोलते नहीं कि होने ना पढ़ ले, जोर ना बोलो। हाँ, अबलीस से बड़ा कौन है? कौन है? हैं? अच्छा कई बड़ी ठंडी ठंडी दुआ कर देने कि किते पाइए इधरों ही ना मनु आ जाए, वो तो छेड़ते भी नहीं है।
اور کئیاں دا میں کل ہی کئی پرسوں بتا رہا تھا اس بات کے لیے کہ کئیاں نے ابلیس نو بھی بہت بڑا ہوا بنایا. ہاں وہ طاقتور ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں طاقت ہوگی, کلام بھی کہتا ہے اس میں ہوگی, لیکن جس کو آپ اور میں مانتے ہیں اس میں اس سے طاقت کہیں بڑی. میں کہنا چاہتا ہوں وہ صرف کیا ہے, وہ بشر ہے, وہ مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ خالق ہے. زور سے نعرہ لگائیے, کیونکہ آپ اپنے پرستش کرتے ہیں اس لیے. اور لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام کو اگر یوحنا کی انجیل خط کو پڑھا جائے تو وہاں لکھا ہے جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آمین آمین آمین. تے تہاڈا دھیان کدھر ہے؟ خدا وال کے؟ اچھا بندے دا پتہ کدوں لگدا جدوں مصیبتاں پریشانیاں دکھاں چ تے کئی دے پہلے ہلے جاندے جو, کئی دے پہلے ہلے جاندے. جی انہاں نے پوچھئے بھین جی بھائی جی کتھے ساجے؟ پا جی کی دسیے بس ہویا میں چھوٹا جہا نا بخار ہی ہویا کہ دینا تے بخار نہیں کام کر چھڑیے. میں تہاڈا بخار نہیں کام کر چھڑی تے کدھر گئی پرستش, کدھر گئی اکلام, کدھر گئی؟ کیونکہ لیکن میں آج شام کہنا چاہتا ہوں بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے نکالنے کے لیے ہمارا یسوع ہمارے ساتھ. اس نے کہا ہے جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ ندیاں تجھے کیا نہیں کریں گا, نہیں ڈبوئیں گی. اس نے کہا تو آگ پر چلے گا تو شعلہ تجھے کیا نہیں کرے گا, نہیں ڈبائے گا. پر کتنی نہ ساڈے کھانے چ ابلیس ضرور بڑھیا ہوندا ہے. پاویں ایماندار ہو, میں یہ لائیو جاتا ہے کبھی کبھی تو میں کئی دفعہ کئی باتیں کہنے سے گریز کرتا ہوں. میں نے خادموں کو دیکھا, میرے ایلڈر صاحب ہے وہ آندہ بھی تویز تے گلا نہیں پا چھڑی دین. بندے نو تویز پاؤنے ہون تے کی لے 3 واری اگلے نو کہے شاہ صاحب تہاڈی صحت اگے نالوں نا واہ واہ کچھ کی تانوں کی ہویا ہے. لو ادھروں ایک بندہ آ کے پھر کہے شاہ صاحب تانوں کی ہویا ہے. چوتھا پھر بندہ آ جائے لینے جا کے اپنے گھر ضرور کہنا ہے. اور جب منوں میں کہہ لو میں نہیں گل کردا اپنی, اسی انسان ساڈا دھیان ہونا یار منوں ہویا کی ہے, منوں ہویا کی ہے. کیونکہ گلاں نہیں لوکی کی پا چھڑدے نے, تویز پا چھڑدے نے. بہن جی تانوں کی ہویا ہے؟ انہوں دسیا کرو جو ساڈے اندر ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں. آمین. میں اور پاسٹر سالم جو ہیں سنڈے کو جو ہے پاسٹر خالد ایم ناز کے چرچ میں پریچنگ کے لیے گئے. وہاں انہوں نے دعوت دی تھی, ہم نے وہاں خدا ان کا کلام جو ہے وہ سنایا. اور وہ ان کی جو ہے سسٹر ان لا ہے تو وہ ان کے ٹیومر تھی جو ہے وہ سر کے اندر, تو وہ ان کو اپنے چرچ میں ہمیں دعوت دی. جب میں جولائی میں آیا تھا, ان کا چرچ اور ہے تو ان کے چرچ میں تو وہ سنڈے کا دن تھا تو 2 جگہ کلام سنانا تھا صبح کے ٹائم. تو وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے, تو میں نے کہا بھی اب ہماری عمر نہیں ہے کہیں 3 واری کلام سنائیے. تو میں کہا میں نے تو شام کی بھی میٹنگ لینی ہے تو میرے لیے مشکل ہے. وہ کہنے لگے نہیں بھائی جی تو 5 منٹ ہوں اسی کیا ہے لوگوں. میں کیا سناؤں ان کو ایک دم. میں نے ایک ہی بات ان کو سنائی. میں نے کہا کہ یسوع پانی کی لہریں تھیں, شاگرد کہہ رہے تھے بھوت آ رہا ہے, پر تھوڑی دیر میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص پانی پر کیا کر رہا ہے, چل رہا ہے. پانی پر کیا کر رہا ہے, چل ہے. پانی شاگردوں کے لیے تو خوف تھا, شاگردوں کے لیے تو موت تھا. پانی شاگردوں کے لیے بڑا پنجابی چ کہندے نے ہوا سی, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کو وہ ماننے والے ہیں پانی اس کے قدموں کے نیچے. ہماری بیماری ہماری کتنی بڑی جو ہے وہ ہمارا مسئلہ وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن جیسے خداوند خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ پانیوں پر کیا کرتا ہے. کہندی پاری صاحب تسی تے گل کر کے 5-10 منٹ دا کلام سنا کے چلے گئے, پر میرے اندر وہ گل لگ گئی. میں کیا واقعی میری بیماری تو یسوع کیڑا ہے وہ وڈا ہے, تے بیماری جڑی ہے وہ تے کی ہے کہتی. میں کہتی رہی. اور اس نے کل جب ہم سنڈے کو ادھر تھے تو اس نے پاسٹر خالد کے ادھر گواہی دی. اس نے کہا اس وقت سے میری برین ٹیومر
تو بیماری وڈی ہے, ساڈا مسئلہ بڑا کہ کی ہے. حزقیہ کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کیا خدا کے بندے کی جو ہے. تو اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر آج مشکل نہیں نا تو مشکل آنی ضرور. جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں نا بڑے کھلے کھلے بڑے بندے جو اسی چلتے ہیں, کہتے ہمارے قریب آ کے دیکھو پریشرز کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, پرابلمز کیا ہیں. یہ نہیں کہ مالی نہیں ہے بابا, ہمیں کئی سال ہو گئے نے پیسہ تے اسی جائیے بازاراں چ تے اوتھے بھی لوکی سانو چندہ دیندے نے. چندہ اب مسئلہ ہمارا نہیں ہے, چندہ تے کھلائی جو اے دی تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہاں ہر چرچ کہتا ہے, میں کئی دفعہ کہتا ہوں وہ ہر چرچ کہتا ہے پائے جی کتے وڈا ہی ہاتھ پہ گیا جو پادری رحمت دا. میں کہا وڈا ہاتھ نہیں پیا, ساڈا صرف ہاتھ نہیں پیا, ساڈا دل پہ آج کدے نا یسو نا. کئی ہاتھ پاؤندے نے چپ دل نہیں پاؤندے. ساسی کی پایا ہے. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, میں انہوں نے کہا ساڈا ہاتھ چنگا ہاتھ جڑا ہے تھلے نہیں پیا, ساڈا ہاتھ اتھے پیا ہے, ساڈا ہاتھ اتھے پیا ہے. میں کہو تیرے چرچ بھی وڈے, تسی ہے بھی اسٹیبلش, گلاں بھی تہاڈیاں تے ہاتھ ساڈے پئے نے. میں تہاڈے اتنے سالوں تو پئے نے, جے ساڈا ایک پہ گیا تے تانوں کی ہو گیا ہے. مطلب کیا ہے کہنے کا, یہ مطلب ہے کہ ہمارا خدا پھر بھی میں کہتا ہوں کئی پریشرز ہو سکتے ہیں, کئی بحران ہو سکتے ہیں, کئی مشکلات ہو سکتی ہیں, نہیں تو کبھی آ سکتی ہیں. یہ جانیے خداوند کی حضوری میں کہ کئی دفعہ, اور میں خادموں کے بارے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کیا کیا ان کی مشکلات ہیں. شاید اولاد کی کوئی مشکل ہو, شاید صحت کی کوئی مشکل ہو, شاید کوئی اور پریشر ہو, اور کوئی نہ کوئی مشکلات ان کے ساتھ کیا ہے. کیا آپ جو بائیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی مشکلات ہے؟ دکھائیں اپنا ہاتھ جن کے اوپر کوئی مشکلات ہے, دلیری سے دکھائیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کیا نہیں ہے, لیکن ان مشکلات میں میرا رد عمل خدا کے دل کو خوش کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کنونشن, یہ کروسیڈ ایک بہت کامیاب ہو جاتا ہے جب ہمارا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہترین ہوتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اس نے کہا یار حوصلہ رکھو, ہمت نہ ہارو. اور خداوند کا کلام ہے لکھا, سمبو سے نہ ڈرو, جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سے بڑا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اور لکھا آگے 8ویں آیت پہ, اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے. تو لڑائیاں ہماری کس نے لڑنی ہے؟ پتہ اسی کیوں تھک جانے ہیں, اسی خود ہی اپنی لڑائیاں لڑنے ہیں. پر ہم بنا تجربے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اپنی لڑائی کنوں دے دو, کنوں دے دو, کنوں دے دو, خداوند. میں نے کئی مشکلات سے نکلا ہوں. ہمارے ادھر جب میری شادی ہوئی تو مجھے میرے سسرال کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ پراپرٹی ملی, کیونکہ وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ کسی مشنری کی تھی, اور وہ چونکہ کینیڈا سے تھے اور میری ان سے شادی ہو گئی تو ان کی پراپرٹی کراچی میں کافی تھی. ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی بڑا خاندان رہتا تھا شیخوں کا, اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنا تالا لگا لیا. اس وقت MQM کا بہت بڑا دور تھا اور میرے لیے بہت مشکل تھا. ان کے 3 بندے پولیس میں تھے, AIS تھے, اور وہ اعلیٰ عہدوں پر تھے, ایک وکیل تھا, اور پھر وہ 8 بھائی. میں ویسے ہی ڈراں, ایک دن اسی تالا کھولن گئے, انہاں اکھاں کڈیاں ائی پا جائے. سچائی سے کہہ رہا ہوں خدا کے مذہب پر بھاگ آئے. لیکن میں خداوند کی حضوری میں مدد کے لیے اس کو پکار رہا تھا. ابھی جب یہ گیت شروع ہوا تھا, میری مدد لئی رب آپ ہی آیا. میں مدد کے لیے گیت تو نہیں, مجھے گانے آتے, کلام آتا ہے سنانا, اور میں گیت کلانا پسند کرتا ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کوئی غزل کا میں شکین ہوں, سنتا ہوں کبھی کبھی ان کی. اور مجھے 2 گیتوں کا تھوڑا سا, ایک وقت تو بڑا گیت چلا تھا جو ہے خداوند کی حضوری میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. مجھے جتنا گاتا تھا میں نے اپنی چھت پر چڑھ جانا اور میں نے یہ گیت گاتے رہنا خداوند کی حضوری میں, اور روتے رہنا خداوند کے. میں خداوند, اور منو سب تو پیار جو تھا نا پریشر, وہ تھا میرے سسرال جو کے باہر تھے. میں نے کہا انہوں نے کہنا ہے, پاکستانی بھی تھے کچھ, میں نے کہا انہوں نے کہنا ہے یار
ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ कोई कदर नहीं हो, तेने सारी गवा देती है। तो मैं क्या ये बात मेरे लिए ना बड़ी दचके की होनी है जब ये लगनी है। तो मुझे बड़ा इस बात के लिए मुश्किल थी। तो मैं कहता क्या एक और गीत जो किसी ने लाहौर में लिखा था, तलवारां दी छावें बहिंदा है, क्या था उसका गीत था कुछ इस तरह का। मैं थोड़ा थोड़ा गाता था, गुनगुनाता था, साथ रोता रहता था। एक दिन मुझे फोन आया, पादरी साहब ਤੁਹਾਡੇ दरवाजा खुल गया है ते आके अपने घर च दाखिल हो जाओ। मुझे आज तक नहीं पता वो केड़ा बंदा सा जी जेड़ा गवर्नर हाउस गया तो उसने जाकर गवर्नर से बात की कि एक प्रीस्ट का जो है प्रॉपर्टी है, आप क्यों इस बात को कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कि ये मैं नहीं कर सकता था, मेरे यहोवा खुदा पाक यसु नासरी ने ये काम किया है, उसके बेटे ने ये काम किया यसु नासरी ने, और उसने मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हिजकिय्याह पर प्रेशर आ गए। कभी कभी हम पर बहुत बड़े प्रेशर्स आ जाते हैं, बच्चों के हवाले से हों, लड़ाइयों के हवाले से हों, शायद जो है वो कर्जे के हवाले से हों, शायद औलाद ना हो तो घर से निकाल दिए। मैं परसों ही बता रहा था, एक फैमिली थी जिसका जो है उसने 15 साल मुझे सलाम ही नहीं कभी किया। आपको पता ये भी प्रेशर्स हैं, ये भी 15 साल उन्हें कभी सलाम नहीं किया। पता नहीं उन्होंने की थी, मैंने भी नहीं पता। मैं यार इन्होंने गुस्सा पता नहीं की है। लेकिन एक दिन मैं देखा 15 सालों के बाद वो मेरे चर्च में आए, तो हम बैठे दुआ कर रहे थे। मैंने पहले उसको देखा, मैं हैरान हो गया, वो ही नहीं, सॉरी फैमिली। जब मैं उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने पूछा कि क्या मसला है, तो वो सब रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ है। उनकी बेटी थी एक, उसको घर से निकाल दिया था क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये घर ही रहेगी क्योंकि हमारा एक ही बेटा है, इससे भी औलाद नहीं है, कई सालों से औलाद नहीं है। तो ये तो कहा, मेरा दिल टूट गया। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा तो मैं दुआ करने लगा, मेरे आंसू उसके हाथ पर गिरे, मेरे हाथ पर भी गिरे क्योंकि मैंने उसका हाथ बच्ची का पकड़ा हुआ था। और जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरे दिल में आया कि आंसू आ गए हैं, खुदा ने काम कर दिता है। मैं क्या पुत्र तेनू आना ही अपने ससुराल तो फोन, तो जदों आए तो तू उन्हों की गल मान ली। कहती नहीं उन्होंने मैनू कढ़ दिता है, ये तो कामां तलाकां हो गई, हुण मैनू किन्ने मन। मैं क्या जब मैं कह रहा हूँ ये आएगा फ़ोन आपको, वो अगले दिन उसको फ़ोन आया, कहने लगे मेरे खावंद का फ़ोन आया है। उन्हें कहा जी एक शर्त सुलह हो सकती है अगर ये मामा को माफ़ी मांग ले। तो मैं मामा को मांग ला, उन्हें मैनू फ़ोन किया, मैं उस बच्ची को कहा मांगी, उसने मांगी, वो ले गए। और 2 महीने के बाद खुदावंद ने उसकी गोद हरी कर देती। अगे सलाम नहीं सी करते, हुण चुक चुक करते। लेकिन मदद ली वो नहीं होना चाहिए। ये जिंदा ये प्रेशर इस पर आ गया। और एक बड़े बादशाह ने पूरी ताकत से, अगर आप कभी असूरी कौम की पढ़े तो ये उस वक्त सुपर पावर थी, एक सुपर पावर ने इन पर हमला कर दिया और ये ताकत नहीं रखते थे, इनके पास जोर नहीं था, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनके पास कुव्वत नहीं थी उनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन उन्होंने उसका मुकाबला करने के लिए अगे साडा खुदा भी फिर वादी है। बोलो कि साडा खुदा भी वादी है, साडा खुदा भी की है। उन्हें क्या हिजकिय्याह तेनू नहीं लड़ना पएगा, तू मेरे ते एतबार कीता ते फिर तेनू नहीं लड़ना पैना। उन्हें किवें, उन्हें कहा तू चुप कर, तू नहीं लड़ना ते ना मैं ही लड़ना ही, ना तू लड़ना ते ना मैं ही लड़ना ही, एक ही फरिश्ता भेजना ही। कितना ये कितने खुदा के पास फरिश्ते हैं, लाखों करोड़ों, लिखा जिनका शुमार नहीं हो गया। किन्ने भेजे हैं। पर एक गल मैं समझावां तुहानू, हिजकिय्याह ने दुआ की सजे किदे अगे, और मैं लंबा हो जाएगा, आप वहां पढ़े तो आप गौर से घर में जाके पढ़े। लिखा है यशायाह और हिजकिय्याह ने दोनों ने दुआ की। हिजकिय्याह जो है वो बादशाह था, यशायाह नबी था। इन दोनों ने क्या की, किन्ने किन्ने की थी। अच्छा कई दुआ कराउंदे इन्हें करदे कुरदे को नहीं, लेकिन समझे इस बात को भी, यानी यशायाह ने दुआ की, खुदा के बंदे नबी ने, और हिजकिय्याह ने भी दुआ की। खुदावंद ने कहा तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं एक ही फरिश्ता भेजूंगा। मैं सोचन दिया हाँ भी लिखा एक ही फरिश्ता रात नू सूरी जो है उनकी चला गया उस इलाके में, और खुदावंद का कलाम कहता है किन्ने मार देते,
किने मार देते एक ही रात 1,85,000 लोग, जिदी फौज किन्नी मर जे 1 लाख ते पिछे की बचिया? ये जो साडा खुदा। एक ही फरिश्ता, और उसके पास कितने फरिश्ते हैं? लेकिन हिजकिय्याह ने क्या की? प्रेशर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रेशर्स आ सकते हैं, बहरान आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाती है, बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, लेकिन उनमें दुआ करने वाले लोगों को खुदा निकाल देता है। क्या गोजरे की कलीसिया, दीगर इलाकों की कलीसिया इस बात को समझेंगे कि मुश्किल वक्तों में हमने खुदा के कदमों में आना है? और लिखा भी हुआ है खुदा के कलाम में कि अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा हो तो मुझसे क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? सानू मुसीबत होए तो अजीब कदे और पूछने कितने सारे भाई जी कोई पता नहीं, बाबा इन्ने प्रेशर सी मुश्किलात भाई जी दूर। मैं क्यों जिन्नी सगो मुश्किल है उन्ना की आओ, करीब आओ, क्योंकि दुआ सुनी जाती है। इत्ते एक ही मुसीबत नहीं सजे आई, खुदा दा कलाम कहंदा है एक होर वड्डी मुसीबत आ गई। ए यसाया जिहड़ा दे नाल मिल के दुआवां करदा सी, खुदा का बंदा, अजीम बंदा नबी, उसको खुदा की तरफ से एक हुक्म सादर हुआ कि जा हिजकिय्याह बादशाह को कह कि तू अपनी घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरे दिन मुक गए, तेरे दिन। मैं शुक्र करना कि साढ़े चो किसी को नहीं सी गया, नहीं तो उन्हें उंजी गोल बिस्तरा कर लेना सी। लेकिन क्या हिजकिय्याह का ईमान है, उन्हें कहना भाई जी हूँ तो एडे वड्डे बंदे के थ्रू भी नबूवत हो गई है, तो गल भी इन्ना हो गया, हुण मेरा कुछ नहीं जो बचना। तो जे किसी बीबी नूं कह छड़दे बाजी नूं तो वो तो वैसे ही अगे गई होंगी है, पुत्र पत्र होंदा नहीं है, तालियां भी बहुतियां ते ईमान भी। लेकिन मेरी बाजियो ऐसा नहीं करना। जैसे उस पर क्या हुआ है, ये प्रेशर आया है, उसको कहा तेरी उम्र है। हिजकिय्याह ने फिर उन्होंने पता है मेरे को एक कुलिया है, वो खुदा की सूरी में जार जार क्या करने लगा? क्या लिखा है? मदद ली किनू पुकारिया? किनको पुकारा? किनको? तो लीडर्स पर प्रेशर आ सकते हैं, हैं? क्या उसमें दुआ या जिंदगी कम हो जाए? उसमें खुदा को पुकारना कम कर दो? क्या खुदा की हुजूरी में आना कम कर दो? नहीं। हिजकिय्याह फिर खुदावंद की हुजूरी में दुआ करने लगा और रोने लगा। और अभी खुदा दा कलाम कहंदा है कि यसाया घर नहीं पहुंचिया तो दोबारा उत्ते की कलाम नाज़िल होया। ये वेखो कि दुआवां किवें सुनियां जांदियां जो, किवें है? जे ते इत्थों कीती होवे ना अंदरों, तो फिर तो वो एक पारी साहब सी, वो कहंदा सी की आंदे ने पटक दवा ते क्या इसका तरह का फिक्रा, तो वो कहते हैं इधरों दुआ ते इधरों जवाब। तो ये जवाब मिल जाते हैं, लेकिन उनके लिए तो अपने प्रेशर्स में, अपनी मुश्किलात में, अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में खुदा के कदमों में आ जाना। ये आ गया और आकर दुआ करने लगा और कहने लगा खुदा मैं मरना नहीं चाहता। खुदा ने कहा नहीं मरना चाहता तो फिर कर दुआ। दुआ की तो खुदा ने यसाया को भेजा। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, कई लोग कलाम भी कई कहते हैं भाई जी पहले आ कलाम होया हुण आ हो गया, तो मैं क्या खुदा दा कलाम है मैं की करा? पहले यसाया को क्या कलाम मिला था कि अपने घर का की कर लै है? साढ़े वड्डे ने किसी ने नबूवत की होंगी ना इंज, उन्हें कहना मैं नहीं जाना, हूँ पहलों मैं उत्थे कह आया भी तू सारा कुछ ही, तो मैं कह भी देंदे दोबारा जाके तो आंदे लै भी होने डर गया तो लगता है पूरी नहीं होनी, तो हुण कहंदे कुछ भी नहीं होना है कि नहीं? यही मसला है ना। लेकिन याद रहे खुदा तो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी अपनी बातें हैं। वो आज कहे मैं तुझे बरकत दे दूंगा, आज वो कहे बरकत रोक दूंगा, तो उसका काम है। रुकी हुई बरकत जारी हो जाए, ये खुदा का काम है। खुदावंद कहे कि नहीं इसको सजा मिलेगी, हो सकता है आप खुदा की जोरी में झुके और वो कहे मैं इसकी सजा को क्या करता हूं, कैंसिल करता हूं। अभी यसाया शहर में नहीं पहुंचा, दोबारा कलाम उस पर नाज़िल हुआ। क्या कलाम नाज़िल हुआ? कि जा मेरे बंदे हिजकिय्याह को कह कि मैंने तेरी उम्र है हुण खुश होए जो आ वधण वाल काम चलदा च किन्नी बढ़ा देती है, किन्नी बढ़ाती है, किन्नी उम्र बढ़ाती है। तो क्या खुदा उम्र बढ़ा सकता है? हैं? खुदा हमारी चीजों को बढ़ा सकता है? अपना हाथ ऊपर करे, को हमारी चीजों को खुदा बढ़ा सकता है?
हमारे काम हो सकते हैं, खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर सकता है, खुदा बढ़ा सकता है, खुदा बहुत कुछ कर सकता है। जाकर ईसाया ने कहा तू नहीं मरेगा। तेरी उम्र कितनी बढ़ गई है? इंसान फिर भी इंसान ही है। इन्हें क्या भी मैनू किवें पता लगेगा कि मेरी उम्र, असी जिड्डे मर्जी खादम बन जाइए किते ना किते मसले होंदे ने साडे, असी फिर सोचन लग पे ओए ये क्या वधेगी कि नहीं उम्र, खुदा नू क्या किवें पता लगे। कह लगा खुदा मैनू कोई निशानी दे। खुदा ने कहा निशानी तेन दे दो। कह लगा साया क्या करेगा, आगे को बढ़ जाएगा। उन्हें क्या भी अगे नू की पता लगना किवें वध गया। जे बढ़िया होया साया पिछे नू जाए ते साडा खुदा वधा भी सकदा जो, ते साडा खुदा ये साया। और क्या हुआ साया, साया बड़ा हुआ पीछे नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर साया भी क्या आ गया है, पीछे हो गया है। वो शैडो था वो क्या हो गया, वो पीछे हो गया। हिजकिय्याह की दुआ में इतनी पावर थी। हिजकिय्याह नबी नहीं था, हिजकिय्याह बादशाह था। और बादशाहों को आपको पता कितनी मसले होते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी की उभरी हुई ये थी, वो खुदा पर ईमान रखने वाला, खुदा की राहों पर चलने वाला, और सबसे बढ़कर खुदा से दुआ मांगने वाला था। तो मैसेज मेरा ये है आपके लिए कि आप कितनी भी मुश्किल में से हों, कितने भी दुखों में से गुजर रहे हों, कितने भी प्रेशर्स में से गुजर रहे हों, कितने भी मसाइल आपके गमीन हों, मैं समझता हूँ अच्छा हुण मैनू पता लग गया। आज अपना हाथ जरा उच्चा करो, बस असी एंड पे जाने वाले हैं। हुण मैनू पता लगा है जो कोई मुश्किल वाला काम दसदा ना, भाई जी आ काम नहीं जो हुंदा, तो मेरा दिल करता है इसके लिए दुआ की जाए। क्योंकि कई दफ़ा पहले पहले हमारा ईमान था, शुरू में जदों असी दुआ करते हाँ, जेड़ा ते सिर दर्द वाला आउंदा ही ना, तो दिल करदा ये ते हाथ रखो, क्योंकि सानू पता है दर्द इंज गई। लेकिन अब मेरा ईमान ये हो गया है कि जो काम नहीं हो सकता वो खुदा काम करने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। खुदावन इतना बड़ा है कि वो काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि खुदावन की कुदरत क्या है, बहुत बड़ी है। हमारी मंगल की इबारत ऐसे ही होती है जैसे आप हैं, क्योंकि वहाँ शिफा के लिए पूरी कराची से लोग हमारे पास हर मंगल आते हैं, और मैं उनको कहता हूँ हज़ारों गवाहियाँ, और हर खादम जिसको खुदा का मसा है उसके वसीले से खुदा जलाली काम कर रहा है। लेकिन अगर खुदावंद की हुजूर में कोई बड़े बड़े मौज़ात की भी तवक्को करता है, तो खुदा वो करने पर क्या है। तो आज किड्डा मौज़ा पाना जो और जो हाथों तो तुहाडे तो पता लगेगा किड्डा। ये ना सोचियो भी ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, खुदा के लिए सब कुछ हो सकता है। और हिजकिय्याह की किताब में जो हमने तवारीख की किताब में पढ़ा, हिजकिय्याह ये पैगाम देता है कि उसके दुआ से सब कुछ क्या किया है, हुआ है। एक बंदे ना कलाम ही हो गया भी हुण तेरी उम्र पूरी है। ये क्यों ईमान है कि वो ईमान से क्या करने लग गया है, दुआ करने लग गया है। और खुदावंद की हज़ूरी में क्या आप दुआ करना अभी शुरू करेंगे खुदा की हज़ूरी में अपने बड़े बड़े मसले। और आज तुसी वो मसला रखना है कि जिहड़ा मसला हल नहीं तुहाडा आज तक होया, वो भी मसला क्या हो जाएगा। हमारे बड़े प्रोफेसर साहब, हमारे पास्टर यूनुस अहमद सालम साहब, खड़े हो जाएं प्लीज़। ये कई सेमिनरियों में पढ़ा रहे हैं, ये इब्रानी के टीचर है। इनकी कमर में कोई 7 या 8 साल ये खड़े नहीं हो सकते थे, ये बिल्कुल बैठकर जो है, और बड़ी तकलीफ में थे, इनके मोरे जो है वो हिल गए थे। हम खुशपुर में भाई परवेज अहमद डोगरा के इबारत करते, उन बच्चे ये छोटे थे इनके, और हमने कई साल पहले इबारत, इस रात हम लेटे हुए थे, रात के 3 बजे थे, मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मनु क्या इसको उठाओ। मैंने इसको उठाया, मैंने कहा यूनुस यार उठो। उठे, मैं कहा जी पुड़कना शुरू करो। एक बंदा सुता ते उधरों दे कमर च मोरियां च प्रॉब्लम, ते उधरों कवे पी कर पुड़को।
ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ तकलीफ सी उठिया कहन कून ते थोड़ा जिहा हिलिया हुआ लेकिन जैसे इसने अपना जंपिंग ली आज तक खुदावंद ने वो काम इतने सालों से किया हुआ है। हमारा खुदा छोटे छोटे काम नहीं करता, हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने का। क्या आज शाम आप बड़े मौजे की तवक्को करते हैं? कितने करते हैं अपने बड़े मौजे की तवक्को? मैं ईमान रखता हूँ और सबसे बड़ा मौजा मेरी नज़र में जो है वो है नजात। मारो हाँ ताली। अगर तुसी नजात पा ली ना तो समझो ये तो बड़ा मौजा कोई नहीं जी। ਉਹਦੇ बाद ये छोटे छोटे जो एक किणमन एवं पूरे हो जाने एवं पूरे हो जाने जो तो फिर तुहाडा ते लोकां ने कहना है भाई जी ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਈ। तो ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ में खुशी मनाਉਣੀ है ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜੋ। लेकिन ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਜਾਤ ਜੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜੋ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਅੱਜ ਬੁੱਤ। हिजकिय्याह ने जिवें की कीते सी तोड़ दिते सी। कितने आज नजात पाना चाहते? आओ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।